Good morning, dear students. So let's come to the unit number 9 of your computer book given on page number 118. So this unit is all about the nested loop. So loops we had discussed in the last unit. Only 3 types of loops are there in Java programming, that is while, do while and for. What are the difference? Actually in the mode of working there is no difference. All the loop you can use any loop in which you are comfortable. The working of the loop is same, only the mode of writing their syntax and how they will work is different. ठीक है, वो आउटपुट सेम लेके आएंगे जैसे आपको चाहिए, मगर उनके लिखने का पैटर्न अलग अलग होता है, उनका सिंटेक्स अलग अलग होता है. नाउ इन दिस चैप्टर विल डिस्कस द नेस्टेड लूप. नेस्टेड loop means one loop inside the another loop. So all the 3 types of loop we can nest them. Okay, means we can make one loop inside the another loop. Sometimes we have to we have some of the programs in which we have to make series, we have to make we have the printing, ठीक है, in which we need 2 type of loops. One type of printing is in the row and another in the column, means in the matrix. Actually in the matrix you have to print, in that you always need double loop. ठीक है, so let's start. First start with the how we can nest a loop. So first we have to write down the outer loop. Outer loop, then the body of the loop, then inner loop, and then the body of the inner loop. First the inner loop ends and after that the outer loops end. For first condition of the inner loop, the first condition of the outer loop, the inner loop will continue till it is true. As soon as it will false, again the counter will go to the outer loop. Now for the second condition of outer loop, again the inner loop starts from the first condition and continue till it is true, and as soon as it is false, again the counter will pass to the outer loop. Again the loop will increment. Like that way the cycle is continue till the outer loop is true. As soon as the outer loop is false, the program will come out of the loop. So first we will discuss nested for loop. So nested for loop means when a for loop is used within another for loop, it is known as nested for loops. So see how a nested for loops actually works. ठीक है, so here is a sample program. Suppose we have to print these series. So these series is actually in a form of matrix. यहाँ पे कॉलम भी प्रिंट हो रहे हैं और रोज भी प्रिंट हो रही हैं. ठीक है, तो हमें 2 लूप चाहिए होंगे. एक लूप आउटर लूप इसका पैटर्न डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, और इनर लूप इसमें एक्चुअल प्रिंटिंग कराएगा. तो देखिए हमने बनाया पब्लिक क्लास पैटर्न, देन मेन फंक्शन, स्कोप ऑफ द क्लास, देन स्कोप ऑफ द फंक्शन. ठीक है, हमको 2 वेरिएबल चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमें 2 लूप इनिशियलाइज करने हैं तो 2 काउंटर वेरिएबल चाहिए, ए और बी. सो फॉर ए इक्वल्स टू 1, और कहाँ तक जा रहा है ए, हमने आपसे बोला है कि मैक्सिमम. ठीक है, ये दैट इज माई लॉजिक, यू कैन डेवलप योर ओन. ऑलमोस्ट 95% ऑफ दीज एस्ट्रिक टाइप पैटर्न, द आउटर लूप इज एक्चुअली फॉर द पैटर्न, कैसा पैटर्न बन रहा है उसके लिए, और इनर लूप एक्चुअली कैसे डिजाइन करते हैं कि एक्चुअल प्रिंटिंग क्या होनी है. तो आप देखेंगे इसमें पैटर्न कैसे जा रहा है, 1 से लेके 5 तक जा रहा है और हर बार एक एक बढ़ रहा है. तो बस हमारा आउटर लूप डिजाइन हो गया. ए की वैल्यू 1 से शुरू होगी, ए जब तक 5 नहीं हो जाता, हर बार एक एक इंक्रीज हो रहा है. अब देखिए यहाँ पे हमें प्रिंटिंग करनी है, तो बी हमेशा किससे शुरू हो रहा है, 1 से. एक्चुअल प्रिंटिंग करनी है ना, तो हर बार क्या हो रहा है, बी 1 से शुरू हो रहा है. तो बी को हमने कहाँ से शुरू करना है, 1 से. हम आपके अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग ही अपना इनपुट क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं. ठीक है, हमने बोला है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, बॉटम अप अप्रोच है. मीन्स व्हाट एक्चुअली वी वांट, अकॉर्डिंगली विल डिजाइन अ प्रोग्राम. ठीक है, सो बी इक्वल्स टू 1 से शुरू हुआ, मगर देखिए बी 5 तक नहीं जा रहा है. बी हर बार हर रो में, ये एक्चुअल प्रिंटिंग करा रहा है रो में, हर बार जो वैल्यू ए की है वहीं तक जा रहा है. यहाँ पर 1 है तो 1 तक जा रहा है, अगली बार 2 हो जाएगी तो 1 और 2 तक जाएगा, फिर आउटर लूप 3 हो जाएगा तो 1 2 3 तक जा रहा है. तो कब तक, जब तक बी लेस देन इक्वल्स टू ए है. जे प्लस प्लस हो गया, हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी. एल एन नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके. तो प्रिंट बी लिखा,
बाहर आए, जब ये लूप फॉल्स हो जाएगा उसके बाद लाइन ब्रेक होगी ln, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम को ड्राई रन कराते हैं हम। ड्राई रन मीन्स कैसे प्रोग्राम वर्क करेगा। हम मे बी व्हेन विल राइट दिस प्रोग्राम इन कंप्यूटर देयर मे बी मेनी सिंटेक्स एरर, ठीक है, बट अगर कॉपी में वो ड्राई रन ठीक हो रहा है, योर आउटपुट इज, यू आर गेटिंग द राइट आउटपुट, मीन्स योर प्रोग्राम इज करेक्ट। देखिए फॉर ए की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, क्या 1 छोटा है 5 से, कंडीशन इज ट्रू। अंदर गए, बी की वैल्यू 1 से शुरू हुई, क्या बी 1 छोटा तो नहीं है मगर बराबर तो है 1 के, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। प्रिंट कर देंगे बी, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लूप बंद हो गया तो फिर से इनर लूप में गया, बी की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, ये गलत लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे बी प्लस प्लस है ये, ठीक है, इट इज बी प्लस प्लस। बी प्लस प्लस हुआ तो बी की वैल्यू 2 हो गई, क्या 2 छोटा है ये से, नो, कंडीशन इज फॉल्स, तो लूप के बाहर आ गया, यहाँ आ गया, इसको ln मिल गया, तो लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पर आ गया। ऊपर गया, a की वैल्यू 2 हो गई, क्या 2 छोटा होता है 5 से, हाँ होता है। अब a की वैल्यू 2 के लिए b फिर 1 से शुरू होगा, तो b 1 है, क्या 1 छोटा है 2 से, कंडीशन इज ट्रू। प्रिंट कर दें b, तो फिर 1 प्रिंट हो गया। ऊपर गया, b की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, b 2 हो गया, तो क्या 2 छोटा तो नहीं है मगर बराबर तो है 2 के, कंडीशन अभी भी ठीक है। b प्रिंट कर देंगे, 2 प्रिंट हो गया। फिर b की वैल्यू 3 हुई, 3 ना तो छोटा है ना बराबर है 2 के, फॉल्स हो गया, तो प्रिंट नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। ln मिला, लाइन ब्रेक हुई, इसलिए लाइन में आ गया। लाइक दैट वे दिस लूप विल कंटिन्यू टिल द आउटर लूप बिकम्स फॉल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।